Welcome to our online classes from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will continue chapter number 2. Chapter number 2, solving a biological problem, and today our topic is hypothesis. Hypothesis is a key component of the scientific process. It is defined as the intelligent guess made by a scientist in the form of a statement. It is important to note that a hypothesis must be testable. This means you should be able to test your hypothesis through experimentation. Your hypothesis must either be supported or falsified by your experiment. For example, in malaria case, an intelligent guess is made after observation that Plasmodium is the cause of malaria, but it is only a gas which can be presented as hypothesis. ये हाइपोथेसिस भी साइंटिफिक मेथड में एक अहमियत रखता है। इसकी तारीफ इस तरह भी की जा सकती है कि ये एक ज़हीन कयास पर मबनी एक स्टेटमेंट होती है। यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हाइपोथेसिस हमेशा काबिल आजमाइश होना ज़रूरी है, जिससे मुराद ये है कि हम इसको तजुर्बात के ज़रिए इसको हम कबूल भी यानी कि कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मलेरिया की बीमारी में प्लाज्मोडियम को मलेरिया की असल वजह करार देना जो हाइपोथेसिस है, दरअसल ये ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर किया गया है। मगर इस बात का ख्याल रहे कि जो हम कयास कर रहे हैं इसको हाइपोथेसिस की सूरत में ही पेश किया जा सकता हो। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग। Biologists collect information about the problem and formulate the hypothesis by using a reasoning process, that is inductive reasoning and deductive reasoning. जो हमारे पास इसके बाद है रीजनिंग है, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुताल्लिक मालूमात की रोशनी में हाइपोथेसिस कायम करके उसको इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग से गुजारते हैं। Inductive reasoning moves from specific to general. That example, shark is a fish. All fishes have scales, therefore sharks also have scales. Inductive reasoning क्या होती है? ये खास से आम की तरफ होती है। मिसाल के तौर पर शार्क एक मछली है और तमाम मछलियों के स्केल्स होते हैं, इसलिए शार्क्स के भी स्केल होने चाहिए। Deductive reasoning moves from general to specific. It is based on if-then statement. Deductive reasoning can be tested and verified by experiment. In malaria case, the following deduction is made. If the Plasmodium is a class of malaria, then all malaria patients should have Plasmodium in their blood, as shown in the figure. डिडक्टिव रीजनिंग आम से खास की तरफ इस पर बहस की जाती है। इसकी बुनियाद इस बयान पर होती है जिन्हें तजुर्बात के जरिए जांचा जाता है। मसलन मलेरिया नामी बीमारी अगर इसके बारे में कहा जाता है अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो फिर मलेरिया के तमाम मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। Once a problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step in the scientific method is to design an experiment based on reasoning. Experiment is a practical performance of scientists to identify the real cause of problem based on inductive and or deductive reasoning. A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists. Scientists perform two types of tests, that is control group and experimental group. To find out the cause of malaria, blood samples of 100 malaria patients, experimental group, and the blood sample of 100 healthy persons, control group, were examined under microscope. एक्सपेरिमेंट जैसे ही कोई प्रॉब्लम
सामने आती है तो हम कोई ऑब्जर्वेशन या मफरूज़ा पेश करते हैं, हाइपोथेसिस पेश करते हैं और साइंसी तरीके से उसको हम अगले मरहले में तजुर्बा उस पर करते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की असल वजह दरियाफ्त करने के लिए हमें किसी तजुर्बे की ज़रूरत होती है, जो भी हम अमली मुज़ाहरा करते हैं वो तजुर्बा कहलाता है। किसी भी तजुर्बे के लिए हमें ये होता है कि मफरूज़ा ये होता है कि उसे दीगर साइंसदान जब जहाँ और जितनी बार भी इसको टेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। साइंसदान अपने टेस्ट को दो अक़साम में तकसीम करते हैं, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। मसलन मलेरिया की वजह दरियाफ्त करने के लिए उन्होंने 100 पेशेंट ले लिए, ऐसे जो मलेरिया के मरीज थे जिसको उन्होंने कंट्रोल ग्रुप कहा, और 100 ऐसे इंसान ले लिए जो सेहतमंद थे, उन्हें कंट्रोल ग्रुप में रखा और दोनों के हमने सैंपल लिए। मलेरिया की वजह मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने 100 जो है मलेरिया पेशेंट्स लिए और उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और 100 हेल्दी पर्सन्स लिए और उनके सैंपल्स देखने के लिए उन्हें कंट्रोल ग्रुप में देखा और दोनों के सैंपल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। रिजल्ट डियर व्यूअर्स, आप हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, DLCPSS एंड HSPSS, और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर। हमारे तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। The results are where you report what happened in the experiment. That includes detailing all observation and data made during your experiment. Result verifies the hypothesis. In the case of malaria, it was found that all the malaria patient experimental group had plasmodium in their blood, whereas the blood sample of healthy persons control group were free from plasmodium. रिजल्ट ये वो मकाम है जहाँ हम तजुर्बात की रोशनी में रिपोर्ट करते हैं, यानी मालूमात बयान करते हैं। इन तजुर्बात के दौरान तमाम मुशाहिदे और जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम जिक्र करते हैं और उसको वाज़ेह करते हैं कि हासिल करदा नताइज में तस्दीक या तरदीद होती है या नहीं होती। मिसाल के तौर पर मलेरिया की सूरत ये है कि तमाम जो मरीज़ हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लिए थे उनके सैंपल में प्लाज्मोडियम पाया गया था और वो मरीज़ हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे थे, और वो मरीज़ जो हेल्दी पर्सन थे उनके जो सैंपल लिए जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप में रखा था, उनका जो ब्लड था उसके अंदर प्लाज्मोडियम के जरासीम नहीं पाए गए थे। ये हमारा रिजल्ट निकला। अब conclusion, final step of the scientific method is developing conclusion. This is where all the results from the experiment are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. Example, conclusion is made that Plasmodium is a cause of malaria. कंक्लूजन क्या है? ये हमारा हतमी नतीजा होता है। इसके लिए तजुर्बात से हासिल करदा तमाम जो नताइज होते हैं उसके मुताबिक हतमी फैसला किया जाता है। अगर ये मफरूज़े के हक़ में हो तो बेहतर है, अगर नहीं है तो तजुर्बात को या तो दोहराया जाता है या उस पर नज़रसानी करके उनको बेहतर बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे कंक्लूजन क्या होगी? कंक्लूजन ये बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो किसका सबब है? मलेरिया का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब ये फाइनल पूरा स्टेप हमारा साइंटिफिक जो मेथड था हमारा फाइनल स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। Theory, scientists use the word theory in very different way than non-scientists. When many people say I have a theory, they really mean I have a guess.
Scientific theories, on the other hand, are well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. They unify many repeated observations and data collected from lot of experiment. For example, theory of evolution. लफ्ज़ जो थ्योरी है वो साइंस और गैर साइंसी दोनों में बहुत फ़र्क है। आम शख्स जब ये कहता है कि आई हैव अ थ्योरी, मेरे पास एक थ्योरी है, तो इससे मुराद इस कोई मफरूज़ा होता है, जबकि इसके बरक्स साइंसी नज़रिया फितरी अवामी की ऐसी वजाहत होती जिसके पीछे काफ़ी काबिल एतबार तजुर्बात और मुशाहिदात होते। इन तजुर्बात और मुशाहिदात को बार बार दोहरा कर आजमाया भी जाता है और जांचा भी जाता है। मसलन जैसे यहाँ पर आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताइए एग्जाम्पल में। Law and principle. Scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is virtually an irrefutable theory. Biology is short in laws due to puzzling nature of life. Law और principle यानी कि कानून और उसूल, साइंसी जो लॉ होता है दरअसल ये भी एक मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल फितरी कानून पर मबनी नाकाबिल तरदीद नज़रिया होता है। इंसान की जो हैरानकुन हैबत होती है उसके बाइस कवानीन की बहुत कमी हो जाती है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस। For data organization, you will prepare a table or graph of the data. Don't throw out data points you think are bad or that don't support your predictions. Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong. Once you have recorded the data, you may need to perform mathematical analysis to support or refute your hypothesis. डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस कहते हैं तस्सीह को। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक टेबल और ग्राफ बनाना होता है और हमें तमाम पॉइंट्स उस ग्राफ पर लिखते हैं, चाहे वो सही हो या हमें सपोर्ट ना कर रहे हों, क्योंकि हैरत अंगेज डिस्कवरीज जो है हमें नज़र आ रही हैं जब डेटा हमें गलत लगता है। जब हम तमाम अपने कायम करदा मफरूज़े को जो सही लग रहा है जो गलत लग रहा है उसको हम इकट्ठा करने के बाद उनका जो इल्म है हम उसको तज़किया कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे गैर फितरी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको दिखाया हुआ है मलेरिया केस दिखाया हुआ है सिंध के अंदर 216 और 17 में। और आप देखिए चार्ट इस तरह बनाया गया है कि आपको मन से एक तरफ लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा मलेरिया पेशेंट सफ़र हुए और वो थे कितने 6000 पेशेंट। इसी तरीके से आपको एक पाई ग्राफ भी दिखाया है और पाई ग्राफ जो दिखाया है वो है कि आपको दिखाया गया पाई ग्राफ में कि बीमारियों के बारे में कि कौन सी बीमारी कितनी % पर है। जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको 51% सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी रेस्पिरेटरी है। और इसी तरीके से मलेरिया में ये 16% है, डायरिया में 15% है, डायसेंट्री और पेचिस और दूसरी जो बीमारी उनका उन्होंने पाईग्राफ बनाया है। पाईग्राफ जो है हम सर्कल के अंदर बनाते हैं। इन डेटा एनालिसिस statistical method, ratio and proportion are applied. Ratio is the comparison of two values expressed as a coefficient, first and second. Example,
A flower has 4 sepals and 12 petals. The ratio of the sepal to petals is 4:12. This ratio can be expressed as an equivalent fraction 1:3. A proportion is an equation stating the two ratios are equal. Example 4:12 proportion 1:3. डेटा एनालिसिस में स्टेटिस का मेथड यूज़ किया जाता है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का। रेशियो जो है कंपैरिजन होता है दो वैल्यूज़ का, जैसे कि फ्लावर में सेपल की तादाद बता दी आपको, पेटल्स की तादाद बता दी कि 4 सेपल्स होते हैं और पेटल्स 12 होते हैं, तो इनका रेशियो जो है 4:12 बना। इस रेशियो को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी 1:3 में। और प्रोपोर्शन जो है वो इक्वेशन होती है दो रेशियोज के दरमियान, कहिए दो रेशियोज को बिल्कुल इक्वल करती है, जैसे 4:12 प्रोपोर्शन 1:3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट स्टडीइंग द इंसेक्ट population. You go into the field and count the population sample in a specific region, then compare your sample with other regions to get population estimated. At every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict and understand the natural phenomena. मैथमेटिक्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट यानी लाजमी जुज़्व है साइंटिफिक प्रोसेस का। आप इमेजिन कर लें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आपने इंसेक्ट पॉल्यूशन आपने देखनी है, उसके लिए आप खेत में जाते हैं और काउंट करते हैं मुख्तलिफ पॉपुलेशन सैम्पल को अपने खत्ते में, फिर आप दूसरे खत्ते से कंपेयर करते हैं। तो इस स्टेप के अंदर आपको किस पे इंहिसार करना होगा, मैथ्स के ऊपर, यानी कि मेजर करने के लिए हमें किस पर इंहिसार करना पड़ेगा, मैथ के ऊपर। तो मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है is a field of research that examine mathematical representation of biological system. One key role of mathematics in biology is the creation of mathematical models. They are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences such as organism behavior, pattern, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of an endangered species, bacterial growth and so on. Finally, we can say that mathematics plays a critical role in better understanding the natural world. मैथमेटिकल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम को हम मैथ्स की मदद से या मैथ्स की मदद से जाहिर किया जाता है। इसमें जो मैथमेटिकल मॉडल्स है इससे काम लिया जाता है, मसलन मसावात या किसी भी फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी वजाहत या पेशगोई कर सकते हैं, जिससे तर्ज अमल के तरीके, वक्त के साथ आबादी में आने वाली तब्दीलियाँ या प्रोटीन की सांख, जानदारों के कद काट या मादूम होने वाली अनवा की आबादी, बैक्टीरिया की अफजाइश वगैरह है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो मैथमेटिक्स हैं वो उसको पूरी वर्ल्ड की जो हमारी नेचुरल है उसको हमको समझने के लिए मैथमेटिक्स जो है इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। आज का टॉपिक हमारा, बल्कि आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैप्टर नंबर 2 के तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुने और जो इस चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिल ब्लैंक्स दिए हुए हैं और डिफाइन द टर्म्स दिए हुए हैं, वो आप लिखें, अपनी नोटबुक में नोट करें और चेकिंग के लिए आप अपना काम स्कूल भेजें। और इसके मुताबिक आपको नोट्स जो हैं, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो स्कूल से ही मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8, 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, दी NCPSS एंड दी HSPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर।
हमारे तमाम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर से। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।